So incubate okay नहीं किया but did you ever feel the need कि not TBI but anywhere incubation in general is needed or is really helpful for startups? ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मुझे किससे रेज करना है, कहाँ इंक्यूबेट करना है, बट कई बार वही पता नहीं चलता। भले मेरे पास 10% है लेकिन 10% 1000 करोड़, बाकी कुछ ये सोचते हैं नहीं मेरे पास 100% रहना चाहिए, भले फिर टोटल वैल्यूएशन उसकी कम है। So what thought of school you belong? So incubate okay नहीं किया but did you ever feel the need कि not TBI but anywhere incubation in general is needed or is really helpful for startups because I see that Bangalore में बहुत सारे incubators हैं, right? तो incubators are really worth it और क्या सीन है आपके? What's your opinion on that? So I have a take that if you have a really like great idea, ठीक है, great idea and great execution maybe, and if you're really developing, there are two types of startups, ठीक है, if you're developing something very core to technology, ठीक है, then you should definitely incubate in your academic institutions because they have grants which are only available to those tech led startups, okay, where you are developing some new technology, maybe you are working on some new research or maybe you are developing something which will lead to a patent, ठीक है, that is where they have a lot of support, where external investors will not be able to get you that support, only an educational institute will be able to get you that support. That so all the technology led startups, I have an advice, go incubate in your own institution, ठीक है, let it be IIT, VIT, any institution, ठीक है, every institution has this grant, ठीक है, where they receive from central government, where they have to invest that percentage of their revenue in new startups, ठीक है, and those startups they usually prefer that it is tech led, technology led, so you should definitely incubate if you are a technology led company. But if you have different use cases, then I think it makes more sense to get incubated by a company which is from the same sector. Let's say you are working and making something in the fintech field, then Rain Matter is a very good incubator which you can go forward to. Rain Matter basically is run by Zerodha, okay, so they can guide you in a way where university incubators can't, ठीक है, and if you are doing something around AI LLMs and maybe if your university does not have a very good program around AI and LLMs, you should always look for going somewhere outside. So my take on incubation is it is good if you think that your institution can provide value, if it is renowned for that field and it can provide value, ठीक है, पैसा और जगह कहीं कोई भी दे देगा, if your idea is good पैसा और जगह कोई भी दे देगा, but if that institution really has a, let's say, research का वहाँ पे it has a research field in that domain in which you are building, then you should definitely incubate because you will have access to all those researches, ठीक है. But if you think बाहर आपका कोई बहुत अच्छे से support कर सकता है, you should really reach out to founders and tell them कि okay we have this, would you like to guide us, या फिर angel round if you want to raise, you should definitely raise from people who are building in that domain, that will help. So that is my take on incubator. Incubator is a good thing, and for technology-based startups, tech-led startups, it is a mandatory thing. They should definitely do this. मतलब there are very good incubators. Birac करके है for all the biotech जो आपकी biotechnology में जो भी startups हैं, ठीक है, वो है. There is NSRCL जो है IIM Bangalore का very good incubator. T-Hub है. T-Hub is coming, मतलब बहुत coming up and coming is incubator है in Hyderabad, ठीक है, and really great ecosystem वहाँ पे पूरा का पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट ने इट हैज पुश्ड फॉरवर्ड. IIT Madras has a very good incubation program, ठीक है, even VIT has its own incubation program. So if you think that your institution has that specialization where you want to you want your startups domain to be, so you should definitely go for incubation in that. So I like this one advice that when you are making a tech-led startup, raise from angel investors who are already in that space, right? हाँ, वो गाइड करेंगे एंड मतलब there are two ways to go about a startup. Either you can do something new and disrupt the whole industry, or you can do something new and get acquired, or you can do something new, go for IPO and मतलब you build basically disrupt करके आप फिर build करते हो, पूरा एक नई category build करते हो, right? So क्या होता है ना कि when these people see that you are building something good, they will, and if you are going in a good direction, maybe they will
एक्चुअली ट्राई टू गाइड यू कि ठीक है ये हमने ट्राई कर रखा है, या फिर वी हैव ट्राइड ऑन दिस, मे बी यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड डू दिस. एंड जनरली फाउंडर्स आर नॉट दैट कम्पिटिटिव कि वो वैसा वो नहीं करते कि ये मेरी फील्ड में कर रहा है इसको मैं ऐसा कर देता हूँ. दे यूजली सी, दे ऑब्जर्व यू कि आप कैसा कर रहे हो. once they see that okay this is something valuable, they maybe will acquire you, maybe will offer you a position, maybe will invest in you if you are really adamant on like you are very clear that okay I will found this myself, मैं अपना पूरा खुद ही company found करूँगा. So anyways, but industry exposure with people who are already in the industry is always a great chance rather than incubating somewhere where that domain specialization is not there. राइट. सो एक इसमें जो एक पॉइंट है राइट कि ठीक है अब मुझे ये पता है कि मुझे किससे रेस करना है, कहाँ इंक्यूबेट करना है, बट कई बार वही पता नहीं चलता ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है that okay maybe I am into fintech space or I am into biotech space, but I don't know that who are the leaders of that space. I don't know that okay who are the investors. So how do you feed yourself that knowledge? How do you stand out, right? Because if I say okay people of my age are already way ahead of me, ठीक है मुझे थोड़ा फोम होगा, but the thing when I look back at it मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन था ही नहीं है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कब हो गया. So how do you get the knowledge everywhere? So this is victim mentality जो बोलते हैं कि मेरे पास knowledge नहीं था. भाई साहब everything is available on internet, ठीक है. And if you are doing a startup in that space without researching enough on that field, you are setting up yourself for failure. That is one thing for sure. ठीक है. You have to have proper research. I like research because I was the director of research at ESL. ठीक है. That is my core domain. Before stepping into any field, a proper research of why you're going to do this. Let's say if you like people actually travel backwards. They first find a solution in their mind and then they actually try to find the problem कि क्या solve करता है. That is not how you create value. You take a pain point, ठीक है. You do extensive research कि how is you see patterns कि यार is it repeating. तो हमारे उसमें भी हमने देखा कि यार ये repeat कर रहा है क्या. Repeat कर रहा है तो what is the solution for that? What are the solutions? Solutions are always present, ठीक है. They may be inefficient, they may be inactive, ठीक है. माइट बी डिसकंटिन्यूड बाय समवन, या फिर अप्रोच गलत थी, ठीक है. सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं. देयर इज नो न्यू प्रॉब्लम इन दिस होल वर्ल्ड. आई एम टेलिंग यू वो सब खत्म हो गया. न्यूटन का ज़माना गया जब वो बोलते थे कि मैंने ये डिस्कवर कर लिया. नहीं, ठीक है. देयर इज एवरी प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड वंस, ठीक है. एंड यू शुड रियली ट्राई टू लुक दैट कि लास्ट अटेम्प्ट्स क्या हुए थे. वहाँ से आप बिल्ड करना शुरू करो कि वहाँ पे वो गलत गए थे. दिस इज ऑल द रिसर्च दे डिड, दिस इज ऑल द मार्केट कम्पिटिटर्स विच आर ऑलरेडी देयर, एंड उसके बाद आप बिल्ड करना शुरू करो, ठीक है. अगर आपने बिना उसके बिल्ड करना शुरू कर दिया एंड यू रीच अ स्टेज एंड देन यू फाइंड आउट अरे यार मेरे पास तो कॉम्पिटिटर्स हैं पहले से, देन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, योर टीम्स टाइम. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फाउंडर हैज़ टू टेक. प्रॉपर रिसर्च करके ही आगे जाओ. Right. So how do you categorize a person as a founder material, if I may say, right? Or what qualities, right, should a founder have? सब कोई फाउंडर बनना चाहता है, सब कोई स्टार्टअप करना चाहता है ना आज के टाइम पे, बट सब कोई उसमें जो है सक्सेस तो हो नहीं रहा है. और मैंने एक चीज़ पैटर्न नोटिस करी है, ठीक है, जो फाउंडर्स के थोड़ा बहुत फाउंडर्स का इंटरव्यू करके मिल के, कि द फाउंडर्स हु आर रियली क्रिटिकल ऑन देमसेल्व्स, जो हाईली क्रिटिसिज्म ले सकते हैं खुद पे कि हाँ शायद मैं गलत होऊंगा, दोज आर रियली ओपन, दोज आर द वंस हु रियली सक्सीड. और जो फाउंडर्स ऐसे होते हैं कि हाँ शायद मैं गलत होगा, अरे देख लेंगे वो ना, वो नहीं ऐसा बनाते ठीक से. सो आई थिंक दैट ये क्वालिटी तो है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है फाउंडर में एक्सेप्ट दिस कि हाँ सेल्फ क्रिटिसिज्म ले सकते हैं बहुत अच्छा. सो आई वुड ऐड ऑन टू दैट सेल्फ क्रिटिसिज्म लेके उसके बाद उससे हताश नहीं होना, ठीक है. आई एम टेलिंग यू बीइंग इन बैंगलोर इट्स ब्रूटल, ठीक है. एवरी डे यू पिच योर स्टार्टअप टू 10 people. They tell you 10 different things about it. 9 of them are negative. ठीक है. कोई एक बंदा बोलेगा हाँ ठीक है. 9 of them are negative. And if you can't stand that criticism ना, it will break you. And more often if you get broken, it will break your team. ठीक है. And that is something मतलब if you have really done your research, of course everything comes down to square one, research. but आपके पास research की backing है. If you have that backing, if you have that conviction among yourself कि आपके पास है कि यार this is a
रियल प्रॉब्लम विच आई हैव टू सॉल्व, ठीक है, दैट इज द ओनली कंसर्न. फाउंडर शुड नॉट हैव अ कंसर्न कि मेरा टेक अच्छा नहीं है, मेरा डिज़ाइन अच्छा नहीं है. उसका पहला कंसर्न ये होना चाहिए मेरी टीम अच्छी नहीं है, उसका पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि मेरे पास रियल प्रॉब्लम है क्या. रियल प्रॉब्लम नहीं है ना, तब तक अपना और दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो. आप डू रियल थिंक आपके पास ये रियल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रियल प्रॉब्लम आ गई. स्विगी जोमेटो ने करा यहाँ डिस्कवर कि मेरे पास एक रियल प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को खाना चाहिए घर में, ठीक है, एंड दे रियली डोंट वांट, दे वांट कंफर्ट. इंडिया वांट्स कंफर्ट. इंडिया का जो जनता है कंफर्ट चाहती है, ठीक है. आई रियली वांट होम एट माई फूड एट माई होम, बट वो नहीं कर सकते, ठीक है. तो वहाँ पर उन्होंने वो एक पेन पॉइंट को पकड़ा और उस पर बिल्ड करना शुरू किया. तो आई थिंक फाउंडर्स का जो ये एक जो क्वालिटी मैंने देखी है, दे हैव टू बी someone who can take criticism, as you said. They have to be very very resilient in their ways, ki even after taking criticism they have to be like, if they have a strong backing, they, at the end of the day, it is you alone in your room, ठीक है. If you don't back yourself up, nobody is going to back you, ठीक है. Every day, as I said, 10 times you will pitch your startup, 9 times you will get a negative response. If that breaks you, I'm sorry man, you are not a founder material. You have to be highly optimistic about your chances, ठीक है. Even though criticism is something which is a tool of growth, ठीक है. Without criticism there is no growth. जब तक कोई डांटता नहीं तब तक समझ में नहीं आता हमारे को. जब तक कोई आपको 2 बार कॉल आउट नहीं करेगा ना कि यार ये गलत बिल्ड हो रहा है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जब तक आपकी ईगो हर्ट नहीं होगा ना, तब तक वो समझ में नहीं आएगा. जब वो समझ में आ जाए, यू शुड हैव द ह्यूमिलिटी टू टेक दैट फॉरवर्ड. ऑल्सो हैव दैट कन्विक्शन कि हाँ ठीक है, मुझे शायद ये नहीं आता होगा, बट सिंस आई हैव डिसाइडेड कि मैं उस फील्ड में जा रहा हूँ, तो दिस काइंड ऑफ देन जो ये जो सामने से आता है ना, ये नॉट सीम एज ह्यूमिलेशन, ये फीडबैक की तरह हम लेते हैं उसको, ठीक है. जो फाउंडर अंदर से कमज़ोर होता है ना, वो इसको ईगो पे लेके ह्यूमिलेट होके वो कहता है अरे मैं तो गुस्सा हो जाता है उससे. तो दूसरा व्यक्ति जो होता है, उसे फीडबैक लेता है, उस पर वर्क करता है, और नेक्स्ट टाइम यू मीट हिम ना, ही हैज़ डेवलप्ड दैट, उसको ओवरकम कर लेगा. तो फाउंडर्स के अंदर ये होता है कि आफ्टर एवरी मंथ ना, आपको पता करना है ना कि आप फाउंडर हो या नहीं. हर महीने अगर आप अपने में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है, मतलब देन यू आर अ फाउंडर मटेरियल. क्योंकि फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो दे कांट स्टिक विद समथिंग स्टेगनेंट, ठीक है. उनको चाहिए ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स, ईदर इन देयर पर्सनल लाइफ और देयर प्रोफेशनल लाइफ, वो ग्रोथ चाहिए. आप यू कैन नॉट बी हैप्पी विद कि सबका चल रहा है तो मेरा भी चल रहा है. यू कैन नॉट बी हैप्पी विद दैट. सो इफ यू स्पॉट समवन की वो इज ऑलवेज वर्किंग ऑन देयर ग्रोथ, दैट इज समवेयर आई फाउंड अ फाउंडर मटेरियल, ठीक है. एंड नॉट जस्ट, मतलब फाउंडर मटेरियल डज नॉट मीन कि you always have to found a company. There are people who can be founders in my own core team also, and I aspire them to be. I'm telling you, this, have you heard of this PayPal mafia? ठीक है. So there is something in Indianized version also. It's called Paytm mafia. Paytm, Flipkart. वो बंसल, जो संजीव बंसल था, उसने पूरा they developed that whole core team, और they went on to found new companies also. So get those people, get founder material people around you and let them own the product. कि अगर आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, इट्स योर प्रोडक्ट, आप कर लो. आप मार्केटिंग पे काम कर रहे हो, आपकी मार्केटिंग है, आप संभालो. आप उस पे काम कर रहे हो, अपना सेल्स पे काम कर रहे हो, आपकी सेल्स आप संभालो, ठीक है. और व्हेन दे हैव दैट कन्विक्शन, व्हेन दे हैव, एज आई सेड, व्हेन दे हैव दैट कॉन्टेक्स्ट कि पूरी कंपनी में क्या चल रहा है, वो डेवलप होगा अपने आप. तो ट्राई टू फाइंड दोज पीपल हु आर ऑलवेज चेजिंग ग्रोथ, कभी भी रुकते नहीं है वो. कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ पे. जो कंफर्टेबल हो गया ना, वो फाउंडर नहीं बन सकता. बिकॉज फाउंडर हैज़, मतलब जितना भी कोई लोग बोलते हैं ना कि टॉक्सिक है, ये सब है, हसल हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ अ फाउंडर्स लाइफ. हसल लीड्स टू ग्रोथ, ठीक है. दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी देयर रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेज यू आर. जिस दिन आपने हसल करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने ग्रोथ के पीछे भागना छोड़ दिया, तो आप ये समझ लो कि योर टाइम फॉर रिटायरमेंट हैज़ कम. इट्स गुड दैट यू, आप कंपनी को एटलीस्ट 0 to 1 में तो आपको ये चाहिए. मे बी आप अगर एक Fortune 500 कंपनी के CEO, देन योर थिंकिंग इज डिफरेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 0 to 1, 1 to 10 और 10 to 100 का सबकी थिंकिंग डिफरेंट होती है. आई एम टॉकिंग टू पीपल, जो भी आपके ऑडियंस है, 0 to 1 ज़्यादा करती है. 0 to 1 में तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिलेंटलेस टूवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग. अच्छे से रिसर्च करो, रिसर्च में बैक आ गया, उसके बाद हैव दैट कन्विक्शन अमंग योर सेल्फ. जो भी फीडबैक मिले, अच्छे से फीडबैक लो,
भी आप ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि उसको सामने वाले को बोलो थैंक यू, आपने फीडबैक दिया, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट दैट पर्सन वो दिखाओ उसके कि हाँ भाई मैंने उसको ओवरकम कर लिया। जो व्यक्ति वो जर्नी पूरी कर सकता है ना फ्रॉम लास्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम, दैट इज द फाउंडर मटेरियल जो ग्रोथ चेज करता है, वो चीज़। मैंने एक फाउंडर को देखा था, लाइक उनने कुछ अपनी वेबसाइट दिखाई एंड आई वाज लाइक कि भैया ये कुछ चेंजेस कर दीजिए, ये ठीक नहीं लग रहा। एंड 10 मिनट में उन्होंने कॉल किया, श्रेय वेबसाइट देख, मैं देखा चेंज हो गया 10 मिनट में उनने जो, और रात के 11:30 बज रहे थे तब, रात के 11:30 बजे उनने डेवलपर को कॉल किया, अभी क्या कीजिए एक, क्योंकि कल अगर सुबह किसी ने देखा तो ये अच्छा नहीं लग रहा। वही ग्रोथ चेज करो, दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी देयर। तो अब कोर टीम जो है वो बन ली, ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के बीच में कि केक को बड़ा करना है ना, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि एक केक है, आपको उसको बड़ा करना है या आपका उसमें जो शेयर है वो बड़ा होना चाहिए। कि अब कोर टीम बन रहा है, ठीक है, तो अब इक्विटी सबको आप बांट रहे हो, इक्विटी अपने पास रख के सबको कुछ और दे रहे हो, है ना, क्योंकि एक सेट ऑफ फाउंडर्स होते हैं जो ये सोचते हैं ठीक है यार भले मेरे पास 10% है लेकिन 10% 1000 करोड़ का होगा, बाकी कुछ ये सोचते हैं नहीं मेरे पास 100% रहना चाहिए, भले ही फिर टोटल वैल्यूएशन उसकी कम है। सो व्हाट थॉट ऑफ स्कूल यू बिलोंग? So the people who start the company with you, ठीक है, the people who are involved in initial discussion, जो co-founders हैं, of course they should have the maximum equity with them, but that does not mean that you don't give equity to your founding team. Founding team को हमेशा equity देनी चाहिए, that is what brings responsibility in the team, ठीक है, that is what brings ownership. ownership आप मन में तो बोलते रहो, ऐसा उनके वाणी में तो बोलते रहो, but वो कर्म में मत लेके आओ उनको। when you say ownership, that means that product, that person is the owner. कि अगर आप IPO करते हो, IPO में आपको कितने शेयर मिलते हैं, डिटेल में आपको सम 0.00 समथिंग % शेयर मिलते हैं, राइट? देन द पर्सन हु हैज बीन पार्ट ऑफ योर टीम फ्रॉम द स्टार्ट शुड हैव एटलीस्ट, मतलब दिस इज 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे आपने बोला कि या तो एक फाउंडर अपने पास बहुत सारी इक्विटी रखता है या फिर वो स्प्लिट करता है अमंग इक्वली अमंग को फाउंडर्स। यू कैन चूज बोथ, दोनों के आगे जाके इफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है कि अगर आप फाउंडर जो है इक्विटी अपने पास पूरी रखेगा, देन ही हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द कंपनी, ठीक है, ताकि कंपनी उससे अलग नहीं जा सकती, मतलब ही कैन गाइड द कंपनी विद दैट विजन, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि आपको इक्विटी रखनी है अपने को फाउंडर्स के बीच में, दैट ऑल्सो हेल्प्स। वाई? बिकॉज हर को फाउंडर के पास सेम रीज़न होता है काम करने का, ठीक है। अगर मैंने आज 90 रख लिया और मैं को फाउंडर को 10 दिया, ठीक है, तो कल उठ के अगर मैं हसल कर रहा हूँ और मेरे को वो हसल 100 दिन तक करनी है, तो 10 आउट मतलब 100 में से 90 दिन आप पाओगे कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ और वो 10 दिन काम करेगा बस, ठीक है। दैट इज़ समथिंग विच शुड नॉट हैपन बिटवीन को फाउंडर्स। तो इफ़ यूर मतलब दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, ठीक है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन को फाउंडर्स, कितना आपने काम किया है, कैसे आप आगे जाना चाहते हो, ठीक है। एंड आई बिलीव फाउंडिंग टीम को यू शुड ऑलवेज गिव इक्विटी, ठीक है। There should always be 2 things, a cliff period and vesting, ठीक है, these are 2 technical terms. What is cliff period? Cliff period is which you give to your co-founder या फिर founding team को, कि आपको अगर अपनी इक्विटी आपको रियलाइज़ करनी है, उससे पहले you will have this some time, जिससे पहले अगर आपने कंपनी छोड़ी, ठीक है, तो वो आपकी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट होकर वापस आ जाएगी टू द होल कंपनी, ठीक है। लेट्स से मैंने आपको 10% अगर आपको दिया और आपको रखा कि आपका एक साल जो है क्लिफ पीरियड है, ठीक है, तो आपने 1 साल से पहले छोड़ा तो आपका 10% आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज समथिंग विच फाउंडर्स कैन यूज एज अ टूल विच कैन हेल्प देम मेक स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है। सेकेंड इज वेस्टिंग। वेस्टिंग में क्या होता है, लेट्स से आई गिव यू 10% ऑन 4 years ऑफ वेस्टिंग, ठीक है। दैट मीन्स आपको हर साल 2.5% मिलता रहेगा, इट विल गेट एडेड टू योर कैप टेबल, राइट। 2.5, ताकि you have greater incentive to work towards the vision and what you're building with, right? So these are the 2 things which you can maybe mention in your incorporation document: cliff period and vesting. ठीक है? This might help young founders.